اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام حمد ہے رب رحمان کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فضیلت تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ہم آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے فضائل بتائیں گے۔ یہ تسبیح جسے ہم تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، یہ تسبیح آئی کہاں سے، کس نے کس کو کب عطا کی؟ ناظرین، ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بابا، میں سارا دن تمام دن امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہوں، پانی کی مشق بھرتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، حسنین کو سنبھالتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، تو بابا میرے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ گھر میں کام میں مدد کے لیے آپ مجھے ایک کنیز عطا کریں، آپ مجھے ایک کنیز عطا کریں جو امور خانہ داری میں میری مدد کرے۔ تو جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے اتنا جملہ کہا کہ مجھے ایک کنیز عطا کیجیے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے قریب آئے، سر کا بوسہ لیا اور آواز دے کے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہا، کیوں نہ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے آپ بندگی خدا میں بھی مشغول رہیں اور گھر کے کام بھی سر انجام دیتی رہیں۔ فرمایا، میں آپ کو کنیز تو عطا نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا اور دن بھر تمام کام آپ کے آسانی سے ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنی دختر سے ایک جملہ کہا جو کہ قیامت تک تمام بنینوں کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی سیدہ، دنیا کی تلخیاں برداشت کرو تاکہ آخرت آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے میں کائنات تک کا درس چھپا ہوا ہے، ایک سبق چھپا ہوا ہے کہ دنیا کی تلخیاں برداشت کیجئے تاکہ آپ کے لیے آخرت آسان ہو۔ تو فرمایا، ہے میری سیدہ، ہے میری بیٹی، میں آپ کو کنیز تو عطا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو دن بھر کام کر کے تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا، اے میری بیٹی سیدہ، میں آپ کو ایک تسبیح عطا کرتا ہوں، آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور تسبیح خدا میں بھی مشغول رہنا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور دن بھر کی تھکن کا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا۔ جناب سیدہ نے جب بابا کا یہ جواب سنا تو عرض کی، بابا جان، جو آپ کی رضا وہ فاطمہ کی رضا، جیسے آپ راضی
वैसे फातिमा राजी। और सैयदा अपने बाबा से तोहफे में मिली ये तस्बीह लेने के बाद अब मामूल बन गया कि अब घर के काम करती तो तस्बीह खुदा में मशगूल रहती, चक्की चलाती तो ये तस्बीह करती, घर के काम करती तो ये तस्बीह करती। सैयदा ने कहा कि बाबा जैसे आपकी रज़ा वैसे मेरी रज़ा, जैसे आप खुश हैं वैसे मैं खुश हूँ। तो ये है तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये किसने किसको अता की? अज़ीज़ान मोहतरम, ये तस्बीह वो नबी जो वही इलाही के बगैर बोलता नहीं, जो वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करता, तो जब उसने अपनी बेटी फातिमा को एक तस्बीह अता की तो क्या अपनी मर्जी से की? नहीं। जिस रसूल का कौल अल्लाह का कौल हो, जिसका फेल अल्लाह का फेल हो, तो जो ये तस्बीह अता की गई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल की तरफ से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, और आपने अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता की। जिस तरह आपने देखा कि इस तस्बीह का नाम तस्बीह जनाब फातिमा क्यों रखा गया? दुआए कुमैल है। अक्सर मोमिनीन ये समझते हैं कि ये दुआ जो है शायद ये हज़रत कुमैल जो मौला के सहाबी थे ये उनके लिए है। हकीकत में ऐसा नहीं, ये दुआ तालीम की गई थी जनाब कुमैल को, इसलिए दुआ का नाम दुआए कुमैल पड़ गया। लेकिन दुआए कुमैल के अंदर जो जिक्र है वो जिक्र खुदा है, नाम मंसूब है हजरत कुमैल से। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई फर्क डाले कि ये तस्बीह तो जनाब सैयदा की है और अल्लाह को छोड़ के फातिमा की तस्बीह करना कोई शिरक ना हो, कोई बिदत ना हो, कोई कुफ्र ना हो, तो उन लोगों के लिए हमने ये तशरीह की और ये मिसाल देकर वाज़े किया कि दुआए कुमैल नाम है सहाबी का, लेकिन जिक्र है जिक्र खुदा। और अब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो तस्बीह अता की गई ये तस्बीह है अताए खुदा, नाम सैयदा के नाम से मंसूब किया गया, लेकिन दरअसल में ये है जिक्र खुदा। और अगर कोई मोमिन दिन भर काम करता है, थकन महसूस करता है, काम में दिल नहीं लगता या काम से उकता जाता है, तो उसके लिए तालीम है कि इस तस्बीह की तिलावत करे, इस तस्बीह को कसरत के साथ पढ़े। और तस्बीह करने के बाद इस बात का यकीन कैसे हो, इस बात का इदराक कैसे हो, इस बात का तयन कैसे हो कि आया कि हमारी तस्बीह कबूल हुई है या नहीं हुई? तो इसका भी हल है। जब आप ये तस्बीह करें और तस्बीह करने के बाद आपको महसूस हो कि आपके बदन से, आपके वजूद से, आपके जिस्म से थकन के आसार खत्म हो गए, थकन दूर हो गई और आपको आपके कल्ब को, आपके दिल को, आपकी आंखों को, आपके वजूद को एक सुकून महसूस, तो जब आपके जिस्म को सुकून महसूस हो तो इस बात का यकीन रखिए कि आपकी तस्बीह कबूल हो गई है। और जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो तस्बीह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की, इस तस्बीह का मकाम क्या है? आइए आइमा हुदा अलैहिस्सलाम के अहदीस और उनके अक़वाल फरामीन की रोशनी में हम आपको बताते हैं कि इस तस्बीह के फ़ज़ाइल क्या है। तो इमाम बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे मासूम ने फरमाया कि तमाम इबादतों से जो अफजल जिक्र है तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। पांचवें इमाम ने फरमाया कि अगर इससे बेहतर कोई और जिक्र होता, इससे बेहतर और इससे अफजल कोई और जिक्र होता तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को वो जिक्र जरूर तालीम फरमाते। और इसी तस्बीह के फ़ज़ाइल में मेरे छठे इमाम इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमाना, आपने फरमाया कि तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हर नमाज के बाद
पढ़ने का जो सवाब है, इमाम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक 1000 रकत नवाफिल नमाज से ज़्यादा है। यानी नमाज के बाद अगर आप तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तिलावत करते हैं तो उसका सवाब 1000 रकत नमाज नवाफिल से ज़्यादा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस तस्बीह की फजीलत के बारे में आपने फरमाया कि हम अपने छोटे बच्चों को इस तस्बीह की तलकीन ऐसे करते हैं जैसे बच्चों को नमाज की तालीम दी जाती है, जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। हम अपने बच्चों को इस तरह तस्बीह पढ़ने की तालीम देते हैं। और इसी तस्बीह जिसे तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है, इसकी फजीलत ये है, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि अगर सोने से पहले वुज़ू करके इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए तो मोमिन जो तस्बीह करने के बाद सो जाता है, सारी रात इबादत में उसका सोना लिखा जाता है, उसका सोना इबादत में मशगूल कर दिया जाता है। अब बात है कि ये जो तस्बीह है जिसे हम तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं, ये तस्बीह जो है इसके पढ़ने का तरीका क्या है, इसको किस तरह पढ़ा जाए। तो जो हर वाजिब नमाज के बाद ये तस्बीह हम पढ़ते हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये जो हम पढ़ते हैं इसको पढ़ने का तरीका क्या है। अब आपने देखा कि अक्सर मोमिनीन ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने के बाद बिल्कुल जल्दी करते हैं और उजरत में इस तस्बीह को पढ़ जाते हैं और मतलब दाने पे दाना फेंका और कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इस तरह पढ़ा जाता है कि जल्दी से। लेकिन अगर आप इसको जल्दी से पढ़ेंगे तो इसका सवाब नहीं होगा। इसको आराम से पढ़ें, इसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ, वक्फे के साथ पढ़ें। जिस तरह के आप पढ़ेंगे कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अकबर कहेंगे तो वो सवाब राइज नहीं होगा, वो सवाब वो फजीलत दर्ज नहीं होगी। इसको पढ़ने का तरीका ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बिल्कुल इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस तरह पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल सवाब। इस तरह पढ़ने से ये होगा कि 2 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन यह कि आपको सवाब मुकम्मल मिलेगा। ये तरीका है इस तस्बीह को तिलावत करने का। अब इसकी फजीलत क्या है, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका ये है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज मुकम्मल करने के बाद जब तुम तशहद में बैठते हो, तशहद में बैठने के बाद, तशहद पढ़ने के बाद जब हम नियत करते हैं कि तस्बीह पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाजब क़ुरबतन इलल्लाह अल्लाहु अकबर, जब हम पढ़ते हैं तो मासूमीन का फरमान है कि हालत तशहद में जैसे तुम बैठे हो वैसे ही इस तस्बीह की तिलावत करो। हालत तशहद में बैठ के अगर तुम इस तस्बीह की तिलावत करोगे, पाँव फैलाने से पहले या टांगे फैलाने से पहले या दायां पाँव बायां पाँव हिलाने से पहले, तशहद की हालत में ही, हालत तशहद में ही जब तुम इस तस्बीह की तिलावत करोगे तो मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम हालत तशहद में से पढ़ोगे तो तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हमने देखा है कि अक्सर मुसलमान, अक्सर मोमिनीन जो हैं वो ये तस्बीह पढ़ते हैं हालत तशहद में बैठने के बाद, टांगे फैला लेते हैं, पाँव फैला लेते हैं। तो इस तरह तस्बीह का सवाब तो होगा, लेकिन जो बताया गया है फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सवाब आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि जैसे ही तशहद से फारिग हों, हालत तशहद में बैठ के ही इस तस्बीह की तिलावत करें। ये वो अनमोल तोहफ़ा है, ये वो कीमती तोहफ़ा है जो नबियों के सुल्तान ने अपनी प्यारी बेटी को अता किया था। ये एक छोटा सा अमल है। नाज़रीन, किसी भी छोटे अमल को मामूली ना समझें। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा, सबसे मुख्तसर सूरा सूरह अल कौसर है, और वो सूरा भी
जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, लेकिन ये वही सूरा है कि अरब के बड़े बड़े शायरों ने अपने कलाम फाड़ दिए थे। इतनी जामे सूरत थी, वजूद में छोटी थी लेकिन मानवियत में बड़ी थी, मकसदियत में बड़ी थी, अपने असर रसूख में बड़ी थी। तो ये कुरान मजीद की खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए। ये छोटा सा अमल है, इसको वाजिब नमाज़ों के अलावा भी आप बजा लाएं। आप फारिग हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो भी आप इस तस्बीह की तिलावत करें। इसका बहुत ज़्यादा अज्र है, बहुत ज़्यादा सवाब है। इसे छोटा अमल समझकर बिल्कुल भी मामूली नहीं समझें, और वक्तन फ़वक्तन जब आप फारिग हों तो इबादत खुदा में मशगूल रहें। एक बार फिर से याद रखिएगा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की ये तस्बीह आपने करनी है। दुआ है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी मखदूमाए अलमियान की इस तस्बीह की फ़जीलत के तसद्दुक़ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम अज़्ज़ा वजल हमको इस तरह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और खालिसतन हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इसी के साथ ज़वाल आलिमा फ़ायज़ा जाफ़री को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।